everyone. So here we are with the argument section, mind your logic. And yes, सीखेंगे तो दिल से. और ये हमने पहले भी कहा था, that was in the assumption session and in the conclusion sessions, which I said कि हम सीखेंगे, हम समझेंगे, लेकिन दिल से समझेंगे. So simplification is the key here. What we are going to do today is arguments. हाँ, argument यानी झगड़ा करना नहीं. So let's understand what are arguments in the logical reasoning section of any test. Oh God, what is this? This is China and this is India. बिल्कुल सही. लेकिन यहाँ पर तो इनकी आर्मीज भी हैं. अब सोचो, अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि ठीक है, इंडिया चाइना को आपस में लड़ाई करनी चाहिए या नहीं, डायरेक्ट वॉर. गॉड, try this. Sit with your group of friends and say, what should India do? India should come up face to face with direct war with China. Oh, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स उस पर झगड़ना चालू करेंगे. आर्ग्यूमेंट झगड़ेंगे, नहीं 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 करना चाहिए, हाँ 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 कर लेना चाहिए. There would be many who would say this, right? But the point here is, if you're saying yes or if you're saying no, but where is the logic there? You can't simply say yes, okay fine, direct war होना चाहिए, or you can't simply say नहीं नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए? You need to give a logic for that. You need to give a reasoning for that. Right? So your reasons should be strong enough to justify your opinion. तो तुम्हारा वो आर्गुमेंट कहलाएगा कि हाँ है तो क्यों है और ना है तो क्यों नहीं है. Either ways, your logic should be strong enough to justify your point of view. That becomes your argument. ठीक है, यू मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन डिबेट, यू मस्ट हैव सीन द डिबेट. तर्क वितर्क दोनों होते हैं, आर्गुमेंट प्लस काउंटर आर्गुमेंट्स दोनों होते हैं वहां पर. So the person who is in for also receives or gets an award, and the person who is against a particular topic will also get an award. It can also get an award. मिल सकता है. क्यों? क्योंकि इसकी रीजनिंग स्ट्रांग थी, उसका जस्टिफिकेशन ऑफ हिज पॉइंट्स स्ट्रांग थे. Right? This is what is argument. So start understanding this now. So those people who say yes होना चाहिए, तो you should have a strong reason. और जो बोलते हैं कि नहीं नहीं होना चाहिए डायरेक्ट वॉर, तो उसका स्ट्रॉन्ग रीजन बताना है. ठीक है? So that is going to support your opinion. ये सोचो. ठीक है? ओ, अब ये क्या है? वापस लड़ाई? हाँ, दुनिया में तो लड़ाई ही तो चल रही है, वर्ल्ड वॉर नहीं है बस. Right? But then the people, the nations are fighting. Right? अब है ये क्या है? न्यूक्लियर पावर. क्या ये जरूरी है? One thing. So if the question comes, should countries have or keep all this armament with them? होना चाहिए, हाँ. क्यों होना चाहिए? अपनी डिफेंस के लिए. So that people or the nation, other nations, other countries do not harm us. We are able to defend ourselves. बहुत सारी चीजें होंगी. अब इस पे भी आप करके देखना डिबेट. Sit with a group of friends and see what each one of you says. So a person who says no also has a strong valid point, and a person who says yes also has a strong valid point. It's not about no or yes. It is about what you are saying, what your opinion is, and what you are giving in support of your opinion. तो जाके आपका पूरा आर्ग्यूमेंट फ्रेम होता है. ठीक है? तो हमने क्या किया था पिछली बार? assumptions किए थे, conclusions किए थे, and all these things will lead you to the argument, or they will be framing that complete argument, or rather weaving your argument, right? So let us see. Oh, अब ये क्या हो गया? अब मैं थोड़े से और सिंप्लीफाइड वर्जन्स बता रही हूँ. पहले तो मैंने बता दिया तुम्हें कि आर्ग्यूमेंट्स होते क्या है, लेकिन अब सोचो आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास किस काम के लिए, कैसे, मतलब हाउ टू अंडरस्टैंड देम इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. सो दिस इज अ हेलमेट, another helmet. Yes. So now my question is, should helmets be made mandatory? Right? So you think upon your reasons. Should they be mandatory? Somebody will say no. Why? बाल बिगड़ जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, सफोकेशन होता है, राइट? एक्सपेंसिव होते हैं. I've got so many answers for no. But then think again, are these logical answers?
क्या ये हेलमेट इतने महंगे हैं कि तुम 2 लाख की गाड़ी तो खरीद सकते हो लेकिन हेलमेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है? सो शोरूम से भी हमें फ्री में हेलमेट मिल जाता है, गाड़ी खरीदो हेलमेट भी साथ में फ्री 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 मिल जाते हैं। पता है, नहीं भी मिले तो हम खरीद सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 लाख की गाड़ी तो हमने खरीद ली। हाँ, ईएमआई में खरीदी, लेकिन इसके तो पैसे होने चाहिए ना, ये भी है। राइट, सो यू हैव अ रीजनिंग एंड यू कैन एक्चुअली काउंटर दैट पार्ट, सो इट बिकम्स इनवैलिड. So what you said is, no, it is very expensive. That becomes an invalid statement argument. Why? Because it can easily be done away with. ठीक है, इतना उसमें दम ही नहीं है ना, जिसकी बात में दम होता है ना, वो कहते हैं कि हाँ इट इज सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट, या हमारी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन किया है या उसको स्ट्रेंथन किया है। तो बात में दम होना चाहिए। अगर आप बोलते हो हेलमेट्स नहीं होने चाहिए मैंडेटरी, क्यों? क्योंकि फाइन लग जाता है। नहीं, क्यों? क्योंकि फाइन नहीं लगना चाहिए। मतलब आप कर क्या रहे हो? आपको कुछ तो रिलेटेड दो ना। उसमें कुछ अनरिलेटेड सा होगा, इररिलेवेंट सा सेंटेंस होगा, तो हाउ कैन यू कंसिडर इट एज योर आर्ग्यूमेंट, और हाउ कैन यू कंसिडर इट स्ट्रेंथनिंग योर आर्ग्यूमेंट? इफ से सफोकेशन होता है, ठीक है, सफोकेशन होता है तो उसका जो कांच है उसको ऊपर कर लो, तो उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन है ना। द गवर्नमेंट कैन सिंक कि ना हेलमेट्स मैंडेटरी नहीं होने चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको पहनने से सफोकेशन होता है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? नथिंग। वो इनवैलिड हो जाता है आर्ग्यूमेंट। सो गिव अ प्रॉपर रीजनिंग। वहां पे फेटिलिटीज इन द एक्सीडेंट्स, इफ देर आर द एक्सीडेंट्स, हेड इंजरीज की वजह से जो फेटिलिटीज होते हैं, दैट इज रिड्यूस्ड, एंड देयरफॉर हेलमेट शुड बी मेड मैंडेटरी. सो यू हैव your idea completely clearly given there. In case of accidents, like head injuries would reduce, or fatalities because of the head injuries, if we meet with an accident, they are reduced. ठीक है, तो ये लॉजिक है सही तरीके से कि हेलमेट शुड बी मेड मैंडेटरी। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम समझते हैं तो हाँ, बच्चों को भी हेलमेट्स पहनाए जाने चाहिए। यस, क्यों नहीं? क्योंकि अगर बच्चे भी टू व्हीलर पे हैं, ठीक है, तो फिर पहनने तो चाहिए। अब सोचो, आपने उसके लिए सपोर्ट में कहा कि देखो, बैंक ने भी कहा है सेफ्टी फर्स्ट। तो नाउ दिस सेंटेंस, सेफ्टी फर्स्ट, will be supporting your opinion that yes, helmet should be made mandatory. Why? Because it has been suggested by a bank, safety first. So this is in support of your opinion. So consider the paragraph carefully, then you'll get to understand what is the author's opinion there, and then what is according to his opinion will be supporting, which is not according to his opinion will be weakening or not supporting. Clear? I hope you have understood this much now through examples. तो अब हम सोचते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स का करना क्या है। ठीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द ऑथर्स ओपिनियन। समझो पहले उसका ओपिनियन है क्या। ठीक है, फिर आता है हमारे पास व्हाट का जवाब। What is something that is according to the author's opinion? So once you identify the author's opinion from the paragraph, then see what is supporting the author's opinion. तो वो सपोर्ट हो जाएगा। और what is going against, तो what के हिसाब से हमारे पास दो चीजें होंगी, एक उसके सपोर्ट में होगी जो उसे स्ट्रेंथन करती है, और दूसरे उसके अगेंस्ट में होगी जो उसे वीकन करती है। तो एक फॉर होगा और एक अगेंस्ट होता है, तो कुछ भी होगा। तो आप व्हाट करके अगर आप, इफ यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑप्शंस आल्सो, राइट? एंड देन योर थर्ड क्वेश्चन देयर विल बी व्हाई। सो वॉट एवर इज गिवन हियर, व्हाई हो सकता है, हाउ हो सकता है। ठीक है, तो हाउ इज दिस सेंटेंस going to prove or going to support or going to justify the author's opinion? How is it going to justify? Right. How is it going to support
तो ये अगर आपको उसका तरीका समझ में आ जाएगा ना कि किस तरीके से जस्टिफाई करेगा, किस तरीके से सपोर्ट करेगा या कैसे वीकन करेगा, right? Then you will be able to come to the right answer. So these are small words, small questions that you need to understand to come to the right answer in your argument based questions. Okay, come on, let us see. Now this is the third topic that I'm starting now. So assumptions, I'm repeating, assumptions हमने पहले देखा है. किसी ने नहीं देखा है तो kindly go back to the day last week and प्लीज वॉच द होल वीडियो. लाइक सब्सक्राइब फॉलो तो डेफिनेटली करना ही है क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे सेशंस और आने वाले हैं. ठीक है. तो थर्ड इसमें आर्ग्यूमेंट्स है जो हम करेंगे आज. हमने अजम्पशन कंक्लूजन कर लिए हैं, अब हम आर्ग्यूमेंट समझते हैं. तो अजम्पशंस और कंक्लूजन्स के हिसाब से अगर हम समझें, सो व्हाट आई हैड डिस्कस्ड इन दोस, दिस इज अ क्विक रिविजन. प्रीमाइसेस इज समथिंग दैट इज a given fact, right? And then assumption is something that is taken for granted. Then you come to a conclusion. So conclusion is the opinion that is formed taking into account the premises and the assumptions. You come to an opinion, you reach an opinion, right? Now, if premises plus assumption come to a conclusion, तो ये सारी चीजें मिलके आपके लिए आर्ग्यूमेंट बनाती हैं. दैट मीन्स योर लाइन ऑफ रीजनिंग. बहुत सिंपल तरीका है ये समझने का. लाइन ऑफ रीजनिंग मतलब किस तरीके से आप पूरा केस बिल्ड करते हो. ठीक है. केसेस तो हमें करने ही पड़ेंगे. क्यों? अगर हम क्रिमिनल लॉयर बनते हैं या नॉर्मली भी अगर आप अभी क्रिमिनल लॉयर नहीं हो, चलो चलो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ. If you and when you wanted to start with this course, right, the career that you have chosen, you had your points there, no? You had to give something to your parents to strengthen your point that see, yes, I want to follow this career now, this is what I have in my mind. उसके भी रीजनिंग दी ना, अपने रीजंस दिए, वैलिड पॉइंट्स दिए. हो सकता है आपने अपने सीनियर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए कि देखो ये क्या है. कोई भी आप जब यूनिवर्सिटी जाओगे तो उसके लिए भी आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगी ना, to strengthen your opinion that no, this is the university that I'm targeting and why so. So why का जवाब भी होगा ना कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो. तो क्यों के लिए हमें कुछ तो स्ट्रेंथन करने का रीजन चाहिए, राइट? तो यहाँ पे जब मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन मार्क वाले स्लाइड पे बताया था, सो वाई मतलब रीजनिंग एंड हाउ मतलब कैसे. तो आपके पास वो रीजंस होने चाहिए. दैट इज व्हाट यू नीड नाउ. सो इट इज अ लाइन ऑफ रीजनिंग which will include premises that is given, assumptions that are taken and conclusion that you arrive at. ये सारी चीजें आपके लिए एक केस बिल्ड करती है. दिस इज हाउ यू बिल्ड अ केस. पूरा केस आप इसी तरीके से बनाओगे तो वो आपका आर्ग्यूमेंट होगा, डिबेट होगा. जब आप अगर डायरेक्टली जाते हैं कोर्ट रूम में तो दिस इज व्हाट यू कैन सी इन मूवीज, दिस इज व्हाट यू कैन सी in any programs, or this is what you can read also in books also. Okay, what somebody is saying, he is supporting his own point. ये होता है आपका ओपिनियन. आर्ग्यूमेंट होता है आपका रीजनिंग. सो आई होप नाउ दिस इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है. पहले हमारा ये काम है समझने में. नाउ वील अप्लाई इट इन आवर पैसेजेस. और पीबीआर है जैसे हमारे पास जो शॉर्ट रहेगा. तो अप्रोच हमारे पास क्या होगा? सो फर्स्ट रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली, then identify the different parts of an argument. So different parts of the argument, as I said, premises plus assumption taken and the conclusion reached at. ठीक है. पीएससी होता है, डायरेक्ट होता है, परपेंडिकुलर होता है ये. ठीक है. और ये पूरा मिला के हमारा आर्ग्यूमेंट बनेगा. तो आर्ग्यूमेंट का एक हिस्सा कंक्लूजन माना जाएगा. आर्ग्यूमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट उसका प्रीमाइसेस होता है. आर्ग्यूमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट उसका अजम्पशन होता है दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड, right? So this conclusion is based on the premises as well as on the assumptions, right? So identify the different parts of an argument because a question can sometimes be identify the conclusion in the author's argument. तो हम क्या करेंगे फिर? ठीक है. अभी तो हमें तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आई एम नॉट टेकिंग, वी विल बी कमिंग अप विद सिंपल क्वेश्चंस नाउ.
सो डू नॉट पिक अ रिस्पॉन्स जस्ट बिकॉज इट इज ट्रू। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि बस सेंटेंस सही लगता है तो सही लगने वाली चीज हमेशा आंसर नहीं होती है। सेंटेंस सही हो सकता है लेकिन क्वेश्चन क्या है? To read the question first. Right? What is asked? Something to in support, something to weaken, but you read the question first. Right? Only the sentence is a true statement doesn't mean that it is an answer. ये पॉइंट मैं हर बार बोलूंगी तुम्हें क्योंकि ये गलती स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं. इट इज अ वेरी कॉमनली कमिटेड मिस्टेक और ब्लंडर यू कैन से. राइट? फिर धीरे धीरे हमारे पास ऐसे लगेगा कि यार ये तो आदत ही बन गई है. नहीं, पहले से ही आप समझ लो इसको. And then of course understand your answer will be targeting a particular side of the argument. पूरे argument को नहीं करेगा, argument के parts को करना चाहिए, हमें समझना चाहिए. And then एक particular side target होता है question में. Right? So understand it carefully. चलो, अब weekends वाला जो question होता है, तो keywords that we get is this. The question variety would say, okay, fine, which of the following weakens the author's argument? हाँ. But then which of the following casts a doubt also? तो डाउट तभी रहेगा ना. डाउट रेज कब होगा? जब हमारे पास एक क्वेश्चन होगा. दैट मीन्स रेज इज अ क्वेश्चन अगेन. अब क्वेश्चन कब होगा? जब वो चीज चैलेंजिंग होगी तो डाउट होगा. मतलब दिमाग में क्वेश्चन, यार ऐसे कैसे हो सकता है? जब ऐसे कैसे हो सकता है तो वो डाउट हो गया. और जब डाउट हो गया मतलब ऑथर का ओपिनियन वीक हो जाता है. देयर इज वन वीक पॉइंट देयर, वन एक्यूलीज हील इज देयर, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल हो जाता है. राइट? अनदर क्वेश्चन वैरायटी दैट आई कैन से इज इट इज वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म. आप ये भी नोट डाउन कर लो. समथिंग दैट इज वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म मीन्स यू आर रेजिंग अ क्वेश्चन देयर और यू आर पॉइंटिंग आउट टू सम लिमिटेशन. कुछ तो होगा ना, तभी तो आप इसके ऊपर सवाल उठा रहे हो. तो ऑथर ने कोई ओपिनियन दिया, कोई आर्ग्यूमेंट दिया है, ऑथर ने अपना पूरा केस बना लिया, लेकिन हम क्या करेंगे? हम उस पर सवाल उठाएंगे. जब हम सवाल उठाते हैं मतलब हमें और आर्ग्यूमेंट का पूरा we don't agree to whatever the author says, so we need something, a point of disagreement, that is right. So conflicting hoga definitely or weaken. So all these words would be there in the question variety. तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, पर मीनिंग क्या है कि हमें कुछ वीकनिंग वाला ही ढूंढना है. And as I said earlier, kindly keep your notebooks ready so that you can jot down these words and phrases. वो आसान हो जाएगा तुम्हें समझने में आगे. ठीक है? चलो. अंडरमाइंस भी एक वर्ड है, आप वो भी नोट डाउन कर लेना. अंडरमाइन इज अ वेरी वेरी सिंपल मीनिंग होता है. अंडरमाइन मतलब सोचो आप एक ब्रिज है, उसके नीचे माइन लगा दिए, तब ब्रिज के नीचे माइन लग जाता है जब, तो ब्रिज क्या होगी? कोलैप्स हो जाएगी. कोलैप्स हो जाएगी मतलब सोचो अब ऑथर का आर्ग्यूमेंट है, उसके नीचे आपने माइन लगा दी, तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट कोलैप्स. तो ऐसे कौन सा सेंटेंस होगा जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को खत्म कर देगा? एक्सटर्मिनेट, इरेडिकेट, कोलैप्स. कंप्लीटली रॉन्ग. राइट? सो दैट सेंटेंस विल बी योर आंसर देन. Come on. This is an easy question now. Come on, let's just do them together, do these questions together. So giving children computers in grade school is a waste of money and teachers' time. ये बड़ा सीधा सिंपल सा बोल दिया उन्होंने कि यार बच्चों को अगर आप कंप्यूटर देते हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है और पैसा, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टीचर्स टाइम. सो दीज चिल्ड्रन आर टू यंग टू लर्न how to use computers effectively and need to spend time on learning the basics. तो एक तो उनको देखो कंप्यूटर दिए जाते हैं, ये एक आयरॉनिकल सिचुएशन हो गई. कंप्यूटर्स दी जाती है ताकि आप काम जल्दी करो, लेकिन कंप्यूटर्स अच्छे से चलाने के लिए भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, तो यू एज इट इज वेस्टिंग टाइम. राइट? तो वो इफेक्टिवली वाली जो बात है वो नहीं होती है क्योंकि उन्हें सीखना पड़ता है. दे नीड टू स्पेंड टाइम इन लर्निंग लाइक अरिथमेटिक एंड रीडिंग. आफ्टर ऑल अ बेबी हैज टू क्रॉल बिफोर शी कैन वॉक. एक एनालॉजी दे दी. ठीक है? छोटा सा बच्चा होगा तो उसको पहले क्रॉल करना पड़ेगा, दोनों हाथ और दोनों पांव पे घुटने के बल उसको चलना पड़ेगा. क्रॉलिंग हो गया, फिर वो खड़े होके चलेगा. दैट इज व्हाट. सो दिस इज लाइक unnecessary and waste of time. What do I need is something that would strengthen the author's argument कि हाँ ये unnecessary है, waste of time भी है. चलो देखते हैं.
Studies showing computers are expensive. राइट, ऐसे स्टडीज होंगी जो बोलेंगे कंप्यूटर्स एक्सपेंसिव है, हाँ वेस्ट ऑफ एनर्जी तो है, वेस्ट ऑफ मनी भी है. रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर गेम्स ऑन चिल्ड्रन, अगर रिसर्च होती है कि क्या इफेक्ट होता है उस पे, वो चीज भी स्ट्रेंथन कर सकती है. लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स हु यूज कंप्यूटर्स improperly और एविडेंस दैट यूजिंग कंप्यूटर्स मेक्स लर्निंग टू रीड डिफिकल्ट. ठीक है, देखो अब ये चारों सेंटेंसेस हमें सही लग रहे थे, अब इसको ध्यान से समझते हैं. यहाँ पर दिया है स्टडी शोइंग कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है, तो वेस्ट ऑफ मनी वाली बात सही है ऑथर के हिसाब से. लेकिन ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या था? ऑथर का आर्ग्यूमेंट था कि इफेक्टिव यूसेज उनको नहीं आता है, टाइम वेस्ट होता है और अरिथमेटिक और रीडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो धीरे धीरे चलना चाहिए ना, दे नीड टू लर्न ऑल दिस. And then you say that yes, computers are expensive, partially correct, but not a part of the argument. It becomes a fact. Right. Second says research on the effect of computer games on children. तो रिसर्च भी कर ली, पर इफेक्ट क्या है वो नहीं बताया. तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट ना स्ट्रेंथन होगा ना वीकन होगा. आप तो बोल रहे सिर्फ रिसर्च कर लो. So nothing is in support or nothing is weakening, undermining. So effects are not given only. So this is ruled out. Expensive ruled out. Partially correct. Examples of high school students who use computers improperly. इसकी बात थी, पर improper usage उसका एक टेक था. ठीक है, उसका अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट क्या था कि देखो बच्चों को कंप्यूटर दे तो देते हैं, वेस्ट ऑफ मनी होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है. क्यों? क्योंकि उन्हें सीखना पड़ता है कि कंप्यूटर चलाएं कैसे, और फिर उनका अरिथमेटिक और रीडिंग भी नहीं हो पाता है क्योंकि वो चलाने के लिए भी उन्हें सीखना पड़ता है. दैट मीन्स नाउ यू विल बी टेकिंग मोर टाइम इन एक्चुअली रीडिंग. अब इसने क्या कहा कि कंप्यूटर इम्प्रॉपरली यूज होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं. हाँ, इसके एग्जाम्पल से ये चीज जस्टिफाई हो जाएगी कि देखो बच्चों को नहीं आता है यूज करना, ये बात सही है, पर बच्चों को यूज करना नहीं आता है, क्या वो पूरा कंप्लीट एक्चुअली आर्ग्यूमेंट था? नहीं. ये सारी थी छोटी छोटी चीजें जो बताते हैं इसका कि कंप्यूटर शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन. सो हिज अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट इज दिस, गिविंग चिल्ड्रन कंप्यूटर्स is a problem. So his argument is that do not give computers to the children. राइट, आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजें प्रेमाइस होंगी, आप उसमें से किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे. किस तरीके से आपको ये सेंटेंस होगा, यस कंप्यूटर शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन. बाय? बिकॉज इट मेक्स देयर अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट. राइट, दे आर नॉट एबल टू कम अप विद देयर ओन क्रिएटिविटी, देयर ओन ओपिनियंस. देयर यहाँ पे अगर एविडेंस मिल जाता है कि यूजिंग कंप्यूटर्स मेक्स लर्निंग टू रीड डिफिकल्ट, वो रीडिंग नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स पे कर लेंगे फटाफट, ऐसे ही बहुत जल्दी आ जाएगा. वो अपना ऐसे नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स पे जाके वो उसके बारे में पढ़ भी लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे बस. so they are not using their minds. People will be using AI, many, right, but their own creativity नहीं चलेगी उसमें. क्यों? क्योंकि एआई यूज करके बहुत आराम से मिल जाएगा तुमको. I took that opportunity to say something. If you have understood, then understand what my argument was, what my point was. ठीक है, कि हर छोटी चीज के लिए एआई यूज करना नहीं, आपकी क्रिएटिविटी अफेक्ट हो जाती है. दिस इज व्हाट आई mention here or understand here, right? So this is what the author's argument is कि कंप्यूटर्स बच्चों को नहीं दिए जाए, अननेसेसरी वेस्ट होता है, बच्चों की रीडिंग, लर्निंग, अरिथमेटिक और ये सब पर असर पड़ता है. So if I get evidence, that will be strengthening the argument. I hope you have understood this. Now the same question, I need something to weaken. Weaken means giving computers to the children is good. So now come up with, so we have understood the paragraph, we have understood the question. अब हमें इसके लिए आंसर चाहिए. तो डेमोन्स्ट्रेशन दैट कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू टीच रीडिंग एंड अरिथमेटिक. प्रॉब्लम तो वही था कि आप कंप्यूटर्स मत दो, नहीं तो रीडिंग और अरिथमेटिक में नहीं आएगा समझ बच्चे को. आप बोल रहे हो कि ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है, करके दिखाना. दे कैन बी यूज्ड, उन्हें यूज कर सकते हैं ताकि आप उसमें से अरिथमेटिक सीख जाओ और उसमें से रीडिंग समझो.
तो फिर ऑथर की पॉइंट ही खत्म हो गई ना, ऑथर का ओपिनियन गया धराशायी, कोलैप्स। व्हाई? Because there have been demonstrations that computers can be used to enhance the reading and arithmetic of a child. Done. Analysis of the cost effectiveness of new computers versus repairing old computers. We are not talking about the repairing. तो बात वीकन की नहीं है कि रिपेयर होते हैं या नहीं होते हैं, ऑथर का आर्गुमेंट भी तो समझना है हमें. Examples of adults who do not know how to use, but then we were not talking about adults. We were talking about providing or giving computers to the children. So this is out of context. And grade reports in the computer classes, अगर grade reports मिल जाती हैं तो इस ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है कुछ नहीं पता है, तो वीकेंड होगा या स्ट्रेंथन होगी ये भी हम नहीं कर सकते. So D is eliminated and what we have in our hands is only A. Why? Because there's a demonstration that see you can use the computers in a positive manner and this can teach the child reading as well as arithmetic techniques. बढ़िया हो जाएगा, बच्चा सीखेगा, और अगर सीखेगा तो आप दे दो उसे कंप्यूटर. ठीक है, यहाँ पे उसने कहा था मत दो, तो वीकनिंग क्या हो जाएगा, नहीं कंप्यूटर्स उसे हेल्प करेंगे बच्चे को तो आप दे दो. दैट्स इट. मतलब द पॉइंट इज आप चाहे क्वेश्चन को हिंदी में समझो या इंग्लिश में समझो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर पूरा केस समझ में आना चाहिए, फिर उसके हिसाब से होता है तो स्ट्रेंथनिंग, उससे अगेंस्ट होता है तो वीकनिंग. ठीक है, विल सी अगेन अनदर वीकनिंग वाला. So recently, highly skilled workers in Eastern Europe have left jobs in record numbers to immigrate to the West. ठीक है, वर्कर्स कहां से हैं, ईस्टर्न यूरोप से. ईस्टर्न यूरोप से वर्कर्स गए और कहां गए, वेस्ट में. So it is therefore likely, as we are in the logical reasoning section, no, you need to focus on the basics of language, and this was what I gave you in the very first session कि आपको बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करना है. यहाँ पे जब इसे therefore likely का है तो likely यानी probability. ठीक है, likelihood यानी ऐसा हो सकता है, possibility है. So it is therefore likely that skilled workers who remain in Eastern Europe, यहाँ से कुछ तो चले गए, अब जो बाकी बचेंगे they are in high demand. ठीक है, यहां से काफी सारे तो चले गए, शिफ्टेड, एमिग्रेटेड, ये हो गए बहुत सारे. ठीक है, ना यहां पे है रिमेनिंग, तो जो रिमेनिंग है स्किल्ड वर्कर्स दे आर इन हाई डिमांड, तो व्हाट आर रिमेनिंग, दे आर इन हाई डिमांड इन द होम कंट्रीज. मतलब ईस्टर्न यूरोप में जो बचे हुए हैं हाईली स्किल्ड वर्कर्स वो हाई डिमांड में है, और कई सारे तो इमिग्रेट हो गए, वेस्ट की तरफ चले गए. राइट, अब ये हो गया कंक्लूजन ऑथर का कि दे आर इन हाई डिमांड. वी नीड समथिंग टू वीकन दिस दैट दे आर नॉट इन हाई डिमांड. तो पहले क्लैरिटी हो गई कि हमें ढूंढना क्या है. तीन ये बताएंगे कि हाँ ये डिमांड में है, और एक ये बताएगा कि देखो भाई डिमांड में, ये लोग डिमांड में नहीं है, हमें ऐसा सेंटेंस चाहिए. तो इफ वी आर क्लियर इन what we need in our answer, after that you go to the options. Unnecessary confusion create नहीं होना चाहिए, right? So Eastern European factories prefer to hire workers from their home countries rather than to import workers from abroad. So these factories they want to hire workers from their home country. यहाँ पे जो रिमेनिंग है तो फिर वो तो डिमांड में होंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो कंट्री वो है कंपनीज हैं वो अपने डोमेस्टिक लेबर को ही यूज करेंगे, हाईली स्किल्ड वर्कर्स को यूज करेंगे. सो दे विल बी इन डिमांड, तो दे विल बी इन डिमांड, तो फिर दैट विल नॉट बी द आंसर. राइट, सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे. मेजर चेंजेस इन ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैव लेड टू द एलिमिनेशन ऑफ मेनी पोजीशंस प्रीवियसली हेल्ड बाय द हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स. ठीक है, सो मेजर चेंजेस इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वाली जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में पोजीशंस ही गायब हो गई हैं. अगर ऐसी पोजीशंस जो थी हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स की, ठीक है, मैंने ये पिछले साइकिल में बनाया था ना, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं जो रहते हैं उनका हाई डिमांड रहेगा, लेकिन यहाँ की जो कंपनीज हैं उनमें ये पोजीशंस ही गायब कर दी है. अगर पोजीशंस गायब कर दिए हैं तो फिर वो हाई डिमांड में कैसे रहेंगे? देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क हियर. व्हाई? बिकॉज
इनकी पोजीशंस गायब हो गई तो डिमांड नहीं रहेगी, एंड देयरफॉर द आंसर. Let's come to the C option. Many Eastern European immigrants need to acquire new skills after finding work in the West. But what you are talking about is about those people who have gone here. तो ये वेस्ट में गए तो इनको यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए. तो बात इनकी तो हो नहीं रही थी ना. वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस इमिग्रेंट्स who left or went to the west. इनकी बात कर ही नहीं रहे. Whether they need new skills or no, we are talking about those people who remained here in the Eastern European country. Right. Eastern European countries, they plan to train many new workers to replace the highly skilled workers who have immigrated. Of course, so those people who have immigrated highly skilled, बढ़िया. पर जो रह गए हैं वहां पे भी हाईली स्किल्ड वर्कर्स का डिमांड होगा, तभी तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ना. ठीक है. They are in demand, and therefore there are new people who have to be trained, those who have to be made highly skilled. Why is the training required? Because that position requires a highly skilled worker. So who is going to fill that space? Right? Those highly skilled workers. Now जो existing है उनकी डिमांड बढ़ेगी, जो है इस कंट्री में उनको सीखना पड़ेगा, तो जाके उनको पोजीशंस मिलेंगे यहाँ पे. So still this sentence is giving you that yes, highly skilled workers are in demand. चाहे उनको ट्रेनिंग देनी हो या जो ऑलरेडी ट्रेंड हो, पर डिमांड में तो रहेंगे. तो बी सेंटेंस आंसर हो जाएगा कि देखो डिमांड इनकी नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि पोजीशंस ही गायब कर दिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. कम ऑन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. कॉलेज प्रोफेसर. ठीक है, देखो अभी बड़े सिंपल सिंपल से हैं क्वेश्चंस. सो आई होप अगर थोड़ा सा कम समझ में आए तो काइंडली गो बैक, रिवाइंड और फिर पूरा अच्छे से समझना. ठीक. सो कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज स्टूडेंट्स do not write nearly as well as they used to. तो used to मतलब पहले वो अच्छा लिखते थे और अब प्रेजेंट में नहीं लिखते. प्रेजेंट में नहीं लिखते और ये पास्ट में बढ़िया लिखते थे. ठीक है, ये रहा ऑथर किसका कहना, कॉलेज प्रोफेसर का कहना कि कॉलेज स्टूडेंट्स डू नॉट राइट, जैसे स्टेट कर दिया फैक्ट, जैसे दे डू नॉट राइट नीटली, दे डू नॉट राइट करेक्ट. फिर उन्होंने दिया almost all of the papers that my students have done for me this year. एक तो ईयर भी है और क्लास भी नहीं किए. तो मेरी ही क्लास के बच्चे जिन्होंने कुछ ऐसे या कुछ लिखा है, अनग्रामेटिकल है और पोअरली रिटन एसेज है, मतलब इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है. पर किसको? पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के बच्चों को, पूरी दुनिया के कॉलेज स्टूडेंट्स को ये सबसेट होता गया? नहीं, मेरे क्लास के बच्चों को. नाउ सी व्हाट यू हैव डन, व्हाट हैज द प्रोफेसर डन. उन्होंने एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया कि आजकल के बच्चे अनग्रामेटिकल लिखते हैं. किस बेसिस पर? मेरे क्लास के बच्चों ने ऐसे लिखा और पुअरली रिटन ऐसे, अनग्रामेटिकल मतलब बड़ी ग्रामर मिस्टेक्स थी. तो उसने अपने क्लास के बच्चों का एग्जाम्पल लेके एक जेनरिक स्टेटमेंट दे दिया. तो व्हाट इज इट? ही इज मूविंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक टू अ जेनरिक वन. ये रीजनिंग होती है. हम रीजनिंग, अभी आई एम नॉट गिविंग यू द रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग एंड पैरेलल रीजनिंग, ये अभी डिटेल कुछ नहीं दे रही हूँ. सिर्फ बेसिक आप समझो, क्योंकि सिंपल करना है हमें, तो सीखो तो दिल से सीखो. धीरे धीरे सीखोगे तो आगे भी और सेशंस हैं आने के हमारे पास, है ना. सो देन यू विल बी एबल टू understand it. So what did he say? Understand, he gave an example of his own class and came up with a generic statement applying to everybody, to all the college students nowadays. And we need something that is weakening. So it requires confirmation that the change in the professor students is representative of a change among college students in general. देखो, रिप्रेजेंटेटिव, इस चीज का हमें कंफर्मेशन चाहिए कि जो आपके बच्चे कॉलेज के, कॉलेज प्रोफेसर की क्लास के बच्चे जो हैं वो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर इसका कंफर्मेशन है तो देन योर सेंटेंस विल बी करेक्ट, अदरवाइज नो. राइट. सो दिस इज एक्चुअली वीकनिंग बिकॉज यू नीड अ कंफर्मेशन. आप कैसे बोल सकते हो कि आपकी क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं और फिर आप उसको पूरा जनरलाइज कर दोगे? ये नहीं कर सकते हो आप. ठीक है, अब दूसरा देखते हैं.
It offers no proof to the effect the professor is an accurate judge. But why do you need a proof? वो प्रोफेसर ऐसे ही थोड़ी पढ़े, तो उन्होंने प्रूफ भी किया, उन्होंने जज भी सही किया ना कि इन बच्चों ने अच्छे से नहीं लिखा है. तो ग्रामर और रिटन जो है वो ये तो प्रोफेसर्स को समझ में आते हैं ना. यू कैन रेज अ क्वेश्चन ऑन दैट. सो इट डज नॉट, यू डोंट नीड टू गिव अ प्रूफ दैट इज आई नो दिस एवरी टाइम. तो प्रोफेसर कुछ बोलेंगे ना, बच्चों को आजकल ग्रामर नहीं आती, तो आप बोलोगे, सपोज मैंने कहा कि बच्चों को आजकल ग्रामर थोड़ी सी कम आती है, तो आप बोलोगे आप प्रूफ तो बताओ कि आपको आती है. So you don't need a proof every time. It does not take into account the possibility that professor is a poor teacher. Why will a professor be a poor teacher? So all these are like irrelevant assumptions there, not required. It fails to present contrary evidence. Contrary evidence नहीं है तो मतलब जो आप बात बोल रहे हो वो गलत हो जाएगी क्या? नहीं. तो ये reasons नहीं है to weaken, right? And they are like something is irrelevant, something is illogical, but what I need to target is what he has done. I need to raise a question there. यहाँ वीकेंड्स के बजाय कास्ट से डाउट आ जाता तो भी ठीक है, वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म आ जाता इस क्वेश्चन वैरायटी में तो भी ठीक है. What is the required is the weakening of the author's argument, that what and how he's using a specific idea to come up with a general statement that is incorrect, and that requires confirmation, and therefore A is your answer. Coming to the fifth question now. So it is repeatedly claimed that the dumping of nuclear waste poses no threat to people living nearby. ये claim है लोगों का क्या कि अगर हम डंप करते हैं न्यूक्लियर वेस्ट इज नो थ्रेट. तो ये क्लेम किया गया है कि आप कहीं पे भी कर लो डंप, it is not going to be a threat to the people. This is a claim. Now the author says if this claim could be made with certainty, मतलब अगर 100% होता क्लेम अगर 100% होता तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में जाके क्यों डंप करते, फिर कहीं भी कर दो. क्योंकि आपने कहा है न्यूक्लियर वेस्ट कहीं भी डंप होगा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, दैट इज नो हार्म कॉज टू द पीपल. एंड दिस इज अ क्लेम, नो हार्म कॉज, नो थ्रेट टू द पीपल. एंड देन यू गो आउट ऑफ द सिटी, सबर्बन एरियाज में बहुत दूर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज पे फिर जाके आप न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करते हो. मतलब कुछ ना कुछ तो दिमाग में ऐसे खटका होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी कि यस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? देयर इज अ मिसगिविंग देयर. सो if this claim could be made with certainty, there would be no reason for not locating sites in areas of dense population. That means then you can come up with the dumping areas in the highly populated cities also, right? Now, but the policy of dumping nuclear waste only in the more sparsely populated regions indicates at the very least some misgiving, यानी कोई ना कोई तो इनको ऐसे ना होता होगा, कोई एप्रीहेंशन होगा कि यार इसको अगर ना हाईली पॉपुलेटेड सिटीज में हम डंप करते हैं, वैसे तो उन्होंने क्लेम कर दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनको थोड़ा सा 5% 10% कुछ ना कुछ होगा मन में कि हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में अगर हमने डंपिंग कर लिया और बाय चांस कुछ हो गया तो क्या. तो ये इसका मतलब दिस क्लेम इज नॉट 100% डन, right? So what is the argument here is this, that the claim is not 100% truly made. You need to weaken that no, it is truly made. Let us see. Evacuation plans in the event of an accident could not be guaranteed to work perfectly except where the population is small. राइट, इवैक्यूएशन प्लान्स इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना मतलब निकालना, ठीक है. हो सकता है कि वो सही तरीके से नहीं चले काम, प्रॉब्लम तो होगी, इतने सारे लोगों को इवैक्यूएट करना वुड मीन अ प्रॉब्लम, राइट? सो दैट इज द रीजन ऑफ व्हाई दे आर dumping the nuclear waste in sparsely populated areas. In the event of an accident, it is certain that fewer people would be harmed in a sparsely populated than in a densely. Again, this is giving you a reason
or why they are dumping the nuclear waste in a sparsely populated areas, क्योंकि fewer people will be harmed. तो ये इस चीज को स्ट्रेंथन कर रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें वो अप्रीहेंशन है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए. ये dumping of nuclear waste poses fewer economic and bureaucratic problems in sparsely populated than in densely populated areas. But the point was about being a threat to the people, and this is causing a threat to the people, and therefore they will be like dumping the nuclear waste in the sparsely populated areas. But economic and bureaucratic reasons were not mentioned there, or would not be the pointers there. Dangers associated with chemical waste, and it too is dumped. So again this is strengthening कि chemical waste से जो problem होती है तो इसलिए उसे sparsely populated areas में dump किया जाता है. तो in the similar manner nuclear waste also might prove to be a threat to the people, and therefore it should also be dumped in a sparsely populated areas. So these three are giving you reasons of strengthening the author's argument. An economic and bureaucratic reason is not strengthening the author's argument, it is giving you a totally different point, and therefore it is not, or it will be weakening the author's argument, and hence C is your answer. Right? So I hope you have understood. Now to just to, in a nutshell, I'll be quickly coming up with what argument is. As I said earlier, it is based on the premise, given facts, assumptions taken, considered to be true, hidden premises, and conclusions made. Okay? So premises are given, facts, assumptions are taken, and conclusion will be arrive at. You arrive at a conclusion. You reach to a conclusion. Right? You form your conclusion, you form your opinion. And all these things together gives you the author's argument. That means his line of reasoning, कैसे उसने सारी चीजों को कनेक्ट किया है. ठीक है, ये हमने कनेक्टिंग द डॉट्स फर्स्ट सेशन में भी किया था, और वही काम करते हैं ऑथर्स अपना आर्ग्यूमेंट, या कोई भी स्पीकर हो अपना आर्ग्यूमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए. ही विल बी कमिंग अप विद अ पॉइंट, रीजन एंड examples in justifying his opinion. That is, and then note it down that this is the way a case is built. So build your case in this manner. How it is woven, ये सारी चीजें उसके ingredients होते हैं, और फिर arguments बने जाते हैं या बुने जाते हैं. Right? So stay positive, stay logical with Vidya always. So do like, share and subscribe this, and I hope this is going to help you. एक बार और देख लेना, and thank you for being here.